Good morning, students. We are doing first chapter sets. I hope you understand all the concepts of this chapter. Now we are doing miscellaneous examples. Example number 28 is show that the set of letters needed to spell cataract and the set of letters needed to spell tract are equal. That means we have to make a set of this word, the letters of this word and with the letters of this tract. Let set A represent the letters of this word. Then this set will have C, A, T, A is repeated. Then R, A is repeated, C is repeated, T is repeated. We don't repeat letters in set. This is B, T, R, A and C. This is set B of letters of the word tract. You can see all the elements are same. Therefore, we can say A is equal to B. Next example is list all the subsets of the set -1, 0 and 1. You are given a set A and you have to write all the subsets of this set. All the subsets means सबसे पहले हम कौन सा लेंगे जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है वो प्लस इसका सबसेट कौन सा होगा दैट विल बी एम्प्टी सेट. नाउ वी विल मेक सबसेट्स ऑफ दिस सेट विद वन एलिमेंट. हाउ कैन यू मेक -1, 0 then 1 with one element this three set with two elements -1 and 0, 0 and 1, then -1 and 1. With three elements -1, 0 and 1. These all are subsets of A. अगर इसी को हमने पावर सेट की फॉर्म में लिखना होगा तो ये सारे के सारे जो सेट्स होंगे इनका अगर हम सेट बनाने का मतलब क्या है, यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे. ये सारे के सारे अब ये पावर सेट के एलिमेंट्स हो जाएंगे. पावर सेट ऑफ ए दिस इज इक्वल टू दिस होल सेट. मतलब पावर सेट के जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेट्स होते हैं, सबसेट्स होते हैं ऑफ सेट ए. अंडरस्टूड. मतलब अब इस वक्त हमें गिवन था कि फाइंड ऑल द सबसेट, देन यू डोंट नीड टू डू दिस. अगर आपको ये कहा होता कि इसका पावर सेट लिखो देन यू हैव टू मेक दिस सिंबल. अगर ये पावर सेट नहीं कहा हुआ है देन यू डोंट नीड टू मेक दिस सिंबल. Okay. Now comes third example. Third example is totally based on concept of union and intersection. पहले मैं आपको यूनियन और इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट एक बार याद बता देती हूँ. यूनियन जैसे A यूनियन B, इसका मतलब क्या है, दो सेट वी आर गिवन टू सेट्स A एंड B. A यूनियन B का क्या मतलब है, इफ X बिलोंग्स टू A यूनियन B दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है, A यूनियन B में है मतलब X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B. मतलब या तो वो A में आ रहा है या फिर वो B में आ रहा है. एंड A इंटरसेक्शन B मीन्स if X belongs to A intersection B means X belongs to A and X belongs to B. Understood? We will use this concept. Okay. Now question is show that A union B is equal to A intersection B implies, this is the symbol of implies, A equal to B. That means this term is given is A union B is equal to A intersection B and you have to prove A equal to B. ये प्रूव करना है और ये चीज़ हमें गिवन है. अच्छा, जो चीज़ हमें अगर कोई भी दो सेट्स हमें इक्वल गिवन हो तो हमें इसको करना क्या होता है, हम कोई भी एक सेट का एलिमेंट ले लेंगे. ए का जैसे हमने एक एलिमेंट ले लिया, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए. अगर एक सेट में आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स उसके यूनियन में भी आ जाएगा. एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, उसके यूनियन में भी आ जाएगा ए यूनियन बी में. बट वी आर गिवन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी.
That means we can write A union B equal to A intersection B. Means X belongs to A intersection B. A intersection B का क्या मतलब है? X belongs to A and X belongs to B. दोनों में आ रहा है, X A में भी आ रहा है और X B में भी आ रहा है. अब ये वाला पार्ट तो हम ये लेकर चल रहे थे, X belongs to A, ये पार्ट तो हम लेकर चल रहे थे. इस पार्ट को कंसिडर करो, X belongs to B. इस पार्ट को अगर हम कंसिडर करेंगे तो हमने X लिया था जनरल पॉइंट, एनी पॉइंट A का एक पॉइंट हमने ले लिया था. तो इसका मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ A इज एलिमेंट ऑफ B, एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सबसेट. That means A is subset of B. If every element of A is an element of B, then A is subset of B. This is our first equation. Now, अब हम क्या करेंगे? B का कोई भी एलिमेंट लेंगे. Let Y belongs to B. अगर B को बिलोंग कर रहा है, then Y will come in A union B. That means Y belongs to A intersection B. Why? Because A union B is equal to A intersection B. इसका मतलब क्या हो गया? Y belongs to A and Y belongs to B also. ये चीज़ तो हम लेकर चल रहे हैं, Y belongs to B. We will consider only Y belongs to A only. Y belongs to A. Y belongs to A मतलब ये हमने Y लिया था, जनरल एलिमेंट लिया था B का, तो इसका मतलब हर एलिमेंट जो B का है that is in A also. अगर B का हर एलिमेंट A में है तो इसका मतलब B is subset of A, क्योंकि B पूरा का पूरा सेट है. therefore we use the symbol of subset. this is one element only. एलिमेंट के लिए हम belongs to का सिंबल लगाते हैं. let this is equation 2 from 1 and 2. from 1 and 2 means अगर A B का सबसेट है और B इज सबसेट ऑफ A, दिस मीन्स A इज इक्वल टू B. इसका मतलब यही हो जाएगा, मतलब A के हर एलिमेंट B में है, B के हर एक एलिमेंट A में है, दोनों इसका मतलब दोनों के एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे. मीन्स A इज इक्वल टू B, और यही चीज़ हमें प्रूव करनी है. And next question is, for any sets A and B, show that A intersection B, this is equal to PA intersection PB. ये चीज़ हमने इक्वल प्रूफ करने हैं, ठीक है. तो वही चीज़ हम लेकर चलेंगे. P stands for पावर सेट, मतलब पावर सेट ऑफ A intersection B is equal to पावर सेट ऑफ A intersection पावर सेट ऑफ B. ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है. जब भी हमें इक्वल प्रूफ करनी होती है, हम किसी भी एक साइड का एक एलिमेंट ले लेंगे. एक एलिमेंट किस टाइप से लेंगे? पावर सेट के एलिमेंट्स क्या होते हैं? एक तरह से सेट्स होते हैं. लेट कैपिटल X बिलोंग्स टू, क्योंकि ये जो X होगा ये इसका एक एलिमेंट होगा पावर सेट का. लेट X बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B. अगर इसके पावर सेट में आ रहा है तो दैट मीन्स X इज सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B. A इंटरसेक्शन B इज अ सेट, therefore X is also a set, therefore X is subset of A intersection B. इसका क्या मतलब है? X is subset of A and क्योंकि इंटरसेक्शन में है तो इसका मतलब दोनों का सेट होगा, ये सबसेट होगा. X is subset of A and X is subset of B also. अगर X A का सबसेट है, that means X will belongs to पावर सेट ऑफ A. पावर सेट के साथ हमेशा सेट का belongs to का सिंबल आता है. सेट का सेट के साथ हमेशा ये सबसेट वाला सिंबल आता है. एंड X belongs to पावर सेट ऑफ B. तो इसका मतलब X है जो पावर सेट ऑफ A को भी बिलोंग कर रहा है, जो X है वो पावर सेट ऑफ B को भी बिलोंग कर रहा है. तो इसका मतलब क्या हो गया? X is subset of power set of A intersection power set of B. ये इसको करेगा, कंटेन कर देगा. तो अब ऐसे ही हमने इस साइड को दूसरी साइड का भी लेना है. लेट Y belongs to Y is subset of power set of A intersection power set of B. इन दोनों के इंटरसेक्शन का ये सबसेट है. That means Y belongs to power set of A and Y belongs to power set of B also. तो इसका मतलब Y अगर पावर सेट है तो इसका मतलब Y is
subset of A and Y is subset of B also. अगर A का भी सबसेट है, अगर B का भी सबसेट है, तो क्या हो जाएगा? Y सबसेट हो जाएगा A इंटरसेक्शन B का. A इंटरसेक्शन B का सबसेट हो गया, तो इसका मतलब हो गया Y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B. लेकिन Y हमने कहाँ से लिया था? ये लिया था पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B. पावर सेट ऑफ A intersection power set of B. This is subset of power set of A intersection B. From 1 and 2, first and second. X यहाँ पर X से subset था, तो X का मतलब क्या था? Power set of A intersection B. यहाँ पर belongs होएगा. This is subset of power set of A intersection power set of B. This is our first equation and this is our second equation. From 1 and 2, power set of A intersection B is equal to power set of A intersection power set of B. मतलब इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट हम कौन सा यूज कर रहे हैं? मतलब किसी भी दो चीज को अगर हमने इक्वल करना है, हम कह रहे हैं कि जो A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B के जो भी एलिमेंट्स हैं वो इसमें कंटेन कर रहे हैं, और जो इसके एलिमेंट्स हैं वो इस पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B में कंटेन कर रहे हैं. एक दूसरे में अगर कंटेन करेंगे, दैट मीन्स दीज टू सेट्स आर इक्वल. Next question. Market research group conducted a survey of 1000 consumers. 1000 consumer का सर्वे किया. That means universal set में कितने elements हो जाएंगे? 1000. And reported that 720 consumers like product A. Number of elements in A is 720. And 450 consumers like product B. Number of elements in B is 450. What is the least number? What must have like both products? मतलब हमने निकालना क्या है? A intersection B. Both product मतलब A intersection B की वैल्यू. Minimum value of this. Minimum value of number of elements of A intersection B. ये चीज़ हमने फाइंड करनी है. सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन देखा क्या चीज़ हमें गिवन है और क्या चीज़ हमें प्रूव करनी है. अब ये देखो ये सारी चीज़ें कहाँ पर आती हैं? ये चीज़ें आती हैं फॉर्मूले में एन ए यूनियन बी. दिस इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी. इस फॉर्मूले में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. हमें इसकी वैल्यू नहीं पता. ए यूनियन बी को एज इट इज. एन ए की वैल्यू पता है 720 प्लस 450 माइनस और इसकी वैल्यू तो हमें निकालनी है. इसको इस साइड पर ले लेफ्ट हैंड साइड पर ले और एन ए यूनियन बी को हम राइट साइड पर ले जाएंगे. देन इट विल बिकम एन ए इंटरसेक्शन बी. दिस इज इक्वल टू 720 प्लस 450 1170 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी. Okay, now we have to find the least value of NA intersection B. इसकी least value होने का क्या मतलब है? Maximum value of number of elements in A union B. What is the maximum number of elements in A union B? That is in universal set. जितने universal sets में elements हैं, किसी भी set में उससे ज़्यादा elements तो हो नहीं सकते. मतलब इसके maximum number क्या हो सकते हैं? 1000. तो इसका मतलब हो गया least value of n A intersection B is when n A union B is 1000. तो क्या वैल्यू हो जाएगी? n A intersection B will be 1170 minus 1000. This is equal to 170. Understood? This is the least value of n A intersection B. Next example is out of 500 car owners investigated. Total हमने कितने investigate किया? 500. तो मतलब number of elements in universal set is 500.
400 on car A. Number of elements in A is 400. And 200 on car B. Number of elements in B is 200. 50 on both A and B. And A intersection B, this is equal to 50. Is this data correct? पूछ रहे हैं कि ये डाटा करेक्ट है कि नहीं. ये चीज़ें हमें पता है कौन से फॉर्मूले में आती हैं. एन ए यूनियन बी, दिस इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी. जो जो वैल्यूज पता है वो सब्स्टिट्यूट करो. 400 प्लस 200 माइनस 50, दिस इज इक्वल टू 550. तो दैट मीन्स एन ए यूनियन बी की वैल्यू क्या है? 550. A यूनियन B इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, क्योंकि ये A और B कहाँ से आ रहे हैं? ये यूनिवर्सल सेट में से आ रहे हैं, तो इनका यूनियन भी यूनिवर्सल सेट्स में से ही होगा. लेकिन यूनिवर्सल सेट में तो 500 है, यहाँ पर A यूनियन B में 550 आ रहा है. Because A union, the number of elements in A union B is more than number of universal sets. Therefore, this data is not correct. कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है इसमें, ऐसा नहीं हो सकता. Next example is college awarded 38 medals in football, 15 in basketball, 20 in cricket. चलो तीन सेट्स बनेंगे. नंबर इसका हम क्या बनाएंगे? इसको हम वेन डायग्राम के हिसाब से करेंगे. ये वेन डायग्राम है. इसमें हमने 3 सेट्स बना लिए, 1, 2 एंड इसके जितने पार्ट्स हैं उनका नाम दे दो. A, B, C, D, E, F एंड देन G. चलो ये यूनिवर्सल है. अब हम देखते हैं डाटा के मुताबिक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी शुरू करते हैं. कॉलेज अवॉर्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल. लेट दिस फर्स्ट सर्कल stand for football, then basketball, then cricket. ठीक है, नाम भी देखो. 38 medals in football. फुटबॉल वाले कौन कौन से हैं? A, B, D, E. A plus B plus B plus E. This is equal to football वाले हैं 38. Then 15 in basketball. Basketball वाले हैं B, C, D, F. B plus C plus D plus F. This is equal to 15. 20 in cricket. Cricket का मतलब है E plus D plus F plus G. This is equal to 20. Okay. If these medal went to total of 58 men. Total कितने हैं? ये total सारे के सारे ये 58 हैं. That means A plus B plus C plus D plus E plus F plus G. This is equal to 58. एक ये चीज़ हमें पता चला. And only 3 men got medals in all the 3 sports. All the 3 sports मतलब जो तीनों में common part है. वो कौन सा part है? This part is D. D की वैल्यू है 3. अब ये हमारे पास डाटा आ गया. अब ये देखो हमने निकालना क्या है. How many received medals in exactly 2 of the 3 sports? Exactly 2 of the 3 sports. चलो सबसे पहले हम फुटबॉल और बास्केटबॉल को देखते हैं. फुटबॉल अगर हम ये वाली चीज़ ना कंसिडर करें, फुटबॉल और बास्केटबॉल वाला कॉमन पार्ट क्या था? ये B और D था. लेकिन exactly 2 स्पोर्ट्स वाला तो पहला B है, क्योंकि D तो तीनों स्पोर्ट्स में आ रहा है. तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा B प्लस, और बास्केटबॉल और क्रिकेट वाले में ये वाला क्रिकेट है और ये वाला बास्केटबॉल है. इनमें कॉमन कौन सा आ रहा था? D और F आ रहा था. लेकिन D को हमने एक्सक्लूड करना है, तो आ जाएगा F प्लस. ऐसे ही फुटबॉल और क्रिकेट में क्या आ जाएगा? E. हमने इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है. अब हमें ये पता चल गया क्या क्या चीज़ गिवन है और क्या चीज़ हमें फाइंड करनी है. नाउ वी हैव टू सॉल्व दीज इक्वेशंस. इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? मतलब इसके लिए हमने इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है. इसको सॉल्व कैसे करेंगे? पहले ये इन तीनों इक्वेशंस को हम ऐड करते हैं. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ. ठीक है. एडिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे व्हाट विल कम आउट?
ए तो एक बार ही आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा। ए प्लस बी कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। बी प्लस बी दैट मीन्स 2b। और सी भी एक बार आ रहा है, प्लस सी प्लस डी कितने बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। 3d प्लस ई कितने बार आ रहा है? 1 2 टाइम्स ई, 2 टाइम्स ई प्लस एफ कितने टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स एफ। और जी कितने टाइम्स आ रहा है? 1। दिस इज इक्वल टू एडिंग दिस 3, 8 और 5 13, 1 carry 73. Yeah, this is 6th equation. Now subtract 6th and 4th. From 6th equation you subtract 4th equation. मतलब 6th equation minus 4th equation. 6th equation minus 4th equation. A से A cancel हो गया, 2b minus b that will be b plus c से c cancel, 3d minus d means 2d. Then 2e minus e यहाँ पर आ जाएगा e. Then 2f minus f plus f, g से g cancel हो गया. This is equal to 73 minus 58. 5 then 15. Now substitute the value of d from 5th equation. Then b plus e plus f. 2 3s are 6 plus 6 this is equal to 15. That means b plus e plus f is equal to 9. This is the answer. ठीक है, जो भी इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये हम वेन डायग्राम से अगर हम करते हैं तो ये बहुत ईजी हो जाते हैं। एंड यू हैव सीन इन दिस क्वेश्चन। तो अब आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके थोड़े क्वेश्चंस करेंगे। आपको जो भी डाउट होंगे आप प्लीज़ मुझे ग्रुप पे कमेंट करके या कहीं पर भी कमेंट करके बताएं, या फीडबैक में भी आप बता सकते हैं कि जो भी आपका डाउट है। देन फर्स्ट चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। दैट्स ऑल।